Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter, I think 7 in new book, chapter 8 in old book. Why I am telling new book and old book? In the new book, in history, there are only 10 sub chapter, but in old book there are 2 book in old book, and chapter 8 is the civilizing the natives, civilizing the natives and educating the nation. Civilizing the natives, educating the nation. My dear student, in this chapter, what we read, I hope you have remembered. In this chapter, we study what? The chapter, the topic, the civilizing the natives and the educating the nation. We studied how the British saw education in India, and also we studied the tradition of Orientalism. The two words which we discussed, the tradition Orientalism the tradition of Orientalism, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी और फिर हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को देखा. हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, हाउ, आई होप कि आप यहां देख रहे होंगे, हाउ द ब्रिटिश सा द एजुकेशन. अब ये एजुकेशन को किस रूप में भारत के देख रहे हैं, और ये चीजें हम लोगों ने किससे जोड़ा. हम लोगों ने कहा कि द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, यहां से हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं. यहां पे मैंने आपसे कहा था कि ओरिएंटलिस्ट, हु कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट, who called Orientalist? Orientalist, it means you can define that word on two ways. First, the person who favored the native language and cultural education of India. And second definition also given in your book. Orientalism, it means those with the scholarly those with this scholarly those with the scholarly knowledge of the language
knowledge of the those with the scholarly knowledge of the language and culture of Asia and culture of Asia. आई होप कि हमने दो डिफिनेशन बता दिए ओरिएंटलिस्ट के। ओरिएंटलिस्ट कौन था? पहली डिफिनेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग कि वो लोग ओरिएंटलिस्ट कहे जाते हैं जो विद स्कॉलरली, जो विद्वता के साथ जानते हो ज्ञान, क्या जो एशिया की भाषा, एशिया का संस्कृति, जो विद्वतापूर्ण इसके बारे में जानकारी रखता है वो कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। और दूसरा मैंने कहा द पर्सन हु फेवर्ड द नेटिव लैंग्वेज एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ इंडिया दे कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। इनके नाम मैंने लिए थे, कुछ नाम हमने आपको बताए थे। मैंने कहा था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, आई होप यू हैव रिमेंबर। क्या थे विलियम जोन्स? विलियम जोन्स ये वही विलियम जोन्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? जूनियर जज थे। विलियम जोन्स, देन आफ्टर एच.टी. कोलब्रुक, एच.टी. कोलब्रुक, इनके बारे में भी मैंने उस दिन आपसे बात की थी। मैंने कहा था कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। फिर मैंने नाम लिया, आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था जेम्स प्रिंसेप, और फिर मैंने नाम लिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था विल्किंसन, विल्किंसन। तो ये जो नाम आपको मिले दे वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट एंड आई होप देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन कि इन लोगों ने भारतीय भाषाओं को फेवर किया। इन लोगों ने ये कहा कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की भाषा है, जो भारत का सांस्कृतिक ज्ञान है, जो वेदों पुराणों में सन्निहित है, हम उनको यदि एक्सप्लेन करें तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा, एक बड़े समृद्ध देश के रूप में दिखेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था उस दिन एक शार्ट लाइन, मैंने कहा था कि जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग द एंशिएंट टेक्स्ट, understanding their meaning, translating them and making their finding known to others. This project they believed would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help the Indians rediscover their own heritage and understand the lost glory of their past. In this process, the British would become the guardians in Indian culture as well its maker. मैंने आपसे यह भी कहा था कि विलियम जोन्स का मानना था जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent the particular attitudes toward India. They shared a deep respect for ancient culture, both of India and the West. Indian civilization, they felt, had attained its glory in ancient past, but had frequently, subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were proceeded in the ancient period for the Hindus of the Muslim, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. मैंने कहा था कि दोनों भारतीय संस्कृति से, सभ्यता से इतना अगाध प्रेम रख रहे थे, उनके मन में ये भावना थी कि जो भारतीय संस्कृति है उनको एक बार फिर से रीडिस्कवर करना चाहिए। ये केवल अंग्रेजों के लिए नहीं फेवर करेगा, बल्कि ये भारतीयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्हें कहते हैं कि वो जितना भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है उतना अंग्रेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अंग्रेज ये बात जान जाएंगे कि भारत की संस्कृति कैसी है तो वो भारत के ऊपर आसानी से शासन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि इंडियंस अपने पुराने ग्लैमरस, अपने पुराने ग्लोरी, नॉट ग्लैमरस, ग्लोरी, अपने डिग्निटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने कल्चर के प्रति लोग समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से एजुकेशन का अपना मीनिंग चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। अगर इन चीजों के आधार पर बातों को समझे तो मुझे लगता है कि आप कोलब्रुक और विल्किंसन की बातों को समझ सकते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, एक साल के तुरंत बाद जब वो भारत में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के जूनियर जज अपॉइंट हुए। उन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक मैगजीन्स निकाली, जर्नल्स निकाले, और फिर किस तरीके से उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को एक नए रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। विलियम जोन्स ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया। विल्किंसन ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया। कोड ऑफ जेंटूज लॉ के नाम से मनुस्मृति ट्रांसलेट की गई, और फिर इस तरीके से एक परंपरा चल गई, भारतीय बुक, भारतीय किताबों का अंग्रेज में ट्रांसलेशन। और ये एक बहुत ही यूनिक बात थी, एक बड़ी विचित्र और अच्छी बात थी कि अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को एक बार नए स्वरूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। लेकिन इसका एक असर भी पड़ा। कुछ लोगों को ये लोग प्रभावित कर किए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के किस विकास के लिए। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला, हिंदू कॉलेज के नाम से खुला, संस्कृत के भाषागत वृद्धि के लिए। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई जब अब एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो ये कह रहा था कि जो ये लोग मांग रहे हैं वो सही नहीं है, पूरी तरीके से ये गलत कह रहे हैं। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। आपके बुक में अगर देखिए तो कहता है ग्रेव एरर, ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक हमने पढ़ा, एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ये। अब दूसरा टॉपिक हमारा है ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट। तो ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट एंड द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म। द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म और ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, दोनों दो ग्रुप की बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स हमने द ट्रेडिशनल ऑफ ओरिएंटलिज्म की बात की। अब हम बात करेंगे द ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट की। ये क्या कहता है, व्हाट ही वांट, हमें ये क्या बताना चाहता है, लेट अस डिस्कस। कहता फ्रॉम द अर्ली 19th century द मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू criticize the Orientalist vision of learning. They said that knowledge of the East was full of error and the unscientific thought. Eastern literature was non-serious and light-hearted. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. James Mill was one of those who attacked the Orientalist, the British effort. He declared should not be to teach what the native wanted or what they
respected in order to place them and win a place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made rather than with the poetry and the sacred literature of the Orient. By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas the Babington, the Machiavelli. He saw India as the uncivilized country that needed to be civilized. To branch of the Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced, and who could deny the declared the Machiavelli that is single safe of good European library was Macaulay, not Machiavelli, sorry, I am extremely sorry, the word is Macaulay. Two words, James Mill and the Macaulay. The statement of Macaulay क्या कहता है? मिल और मैकाले ने दो बातें की. मैकाले कहता है कि by the 1830s the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken influential such critics of time was Thomas the Babington Macaulay. He was Indian. He was India as an uncivilized country that needed to be civilized. To branch of Eastern knowledge, according to him, could to compare to what England had produced. Who could deny, declared Macaulay, that, according to Macaulay, a single safe of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. He urged that the British government in India stop wasting public money in the promoting Oriental learning, for it was of no practical use. With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. He felt the knowledge of English would allow Indians to read some of the first literature the world had produced. It would make them aware of the development in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, value, and culture. Following Macaulay's minutes, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision was to make English the medium of instructions for higher education and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta, Madras, and the Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as a temple of darkness that were falling of themselves into the decree English textbook now began to be produced for schools. What he want to explain, my dear student, अब ओरिएंटलिज्म जो विचारधारा थी, जस्ट इसके अपोजिट एक विचारधारा और आई, और वो विचारधारा थी ब्रिटिशर्स की उस ग्रुप को जिनका मानना था कि भारत का जो ज्ञान है वो सिर्फ किससे भरा है? अंधविश्वासों से भरा है, सुपरस्टिशंस से भरा हुआ है. और ये सुपरस्टिशंस, ये अंधविश्वास भारत को आगे नहीं ले जा सकते. जेम्स मिल और मैकाले इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे. जेम्स मिल, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विच आई इंट्रोड्यूस यू, दैट जेम्स मिल who first time categorized history in three parts: ancient history, medieval history, and modern history. He categorized them: the ancient history, that is Hindu history; the medieval history, the Muslim history; and the modern history, that is the Britishers' history or Englishman's history when he reached India. I mean to say that
कि ये इंपीरियल थॉट्स थी, आई मीन टू से दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे इतिहास को भी ये व्याख्यायित कर रहे थे। इतिहास को उन्होंने कालखंडों में बांट दिया और उन्होंने ये प्रूफ करने का प्रयास किया कि भारत एक पिछड़ा हुआ राज्य, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कभी ज्ञान के नाम की कोई चीज नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ अंधविश्वास था, ये सपेरों का देश था। इस तरह की बातें मैकाले और जेम्स मिल जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखक कर रहे थे। ये वो लोग थे जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के ज्ञान को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जब मैकाले ने इस बात को लिखा कि भारत का संपूर्ण ज्ञान संस्कृत और अरेबिक भाषा में लिखी गई सारी ज्ञान, सारा किताब यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी के सेफ की एक अलमारी में रखे गए किताबों से भी कम है। It means indirectly he tried to prove that the Indian civilization, Indian knowledge, Indian scientific knowledge, I mean everything that is worst, एकदम बेकार है, बर्बाद है, किसी लायक नहीं है, ये प्रूफ करना चाहते थे। और उन्होंने 1835 में इसमें सक्सेस भी प्राप्त कर लिया। मैकाले मिनट्स 1835 में कानून के रूप में आया। Lord William Bentinck, he was the Governor General of India during that time when the Macaulay's ideology was imposed on the Indian education system. अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अब भारत में जो संस्कृत कॉलेज के नाम से जो इंस्टीट्यूशंस खुले थे, जो बड़े बड़े केंद्र थे, उनको अंधकार का केंद्र माना गया। और इस तरह से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को उन्होंने क्या किया? हतोत्साहित किया। यह हतोत्साहित कहना एक तरीके से कम होगा, आप ऐसे समझिए कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को, उन्होंने भारतीय ज्ञान को पूरी तरीके से क्या किया? किक आउट करने का प्रयास किया, पूरी तरीके से निकालने का प्रयास किया। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए हम आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। क्लास 8 में एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप उन चीज़ों को समझिए। लाइक दैट कहते फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning। 19th century की शुरुआत में, in the starting of 19th century, the many British officials who criticized the persons who favored the English language and cultures for study. They said that knowledge of the East was full of error and the unscientific thought। वो कह रहे थे कि भारत का जो ज्ञान है, जो पूरब का ज्ञान है, वो अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, ये तमाम दोषों से भरा हुआ है। कहते हैं ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। जो पूरब में लिखे गए साहित्य हैं वो नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है। इसीलिए विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किया था। आई होप यू आर अवेयर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। हु रोट अभिज्ञान शाकुंतलम? किसने लिखा था? टेल मी। यस यू कैन, बताइए। दैट्स वेरी गुड, यू आर राइट। इट मीन्स अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना थी, संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम जेम्स ने किया। तो ये लोग कह रहे थे जो इस बात को कि ईस्ट का पूरा जो नॉलेज है वो इरर है, उसमें कमियां हैं और अनसाइंटिफिक है। जो भारत के जो पूरब के लिटरेचर है वो नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। इसलिए जो ओरिएंटलिस्ट काम कर रहे हैं अरेबिक और संस्कृत लिटरेचर को उभारने का, उनको प्रकाश में लाने का, ये गलत कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। It means it was a time when the Orientalists criticized by those group who would not favor that the peoples who are doing work for the Indian educational system, that he emerged on a new way, that he developed on the proper way, they were wrong.
वो ऐसा मानते थे कि ये लोग गलत हैं जो ऐसा कर रहे हैं. What they are doing, that is not good. Why? Because they argued that the Eastern literature, that is what? The non-serious literature. Eastern literature was non-serious literature and light-hearted. East was full of error and unscientific thought. So, ये लोग जो विलियम जोन्स जैसे लोग हैं, ये लोग जो इनके नाम मैंने गिनाए, विलियम जोन्स, एच टी कोलब्रुक, जेम्स प्रिंसेप, विल्किंसन, जैसे तमाम सारे लोग वो सारे गलत काम कर रहे हैं. इनको ऐसा नहीं करना चाहिए. What they are saying, I hope you can understand. आप समझ सकते हैं इस चीज को. कहता है जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट. जेम्स मिल उन सब में एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट के ऊपर अटैक किया, ओरिएंटलिस्ट थॉट, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर चोट किया. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड. उन्होंने कहा कि ये बात क्लियर हो जानी चाहिए ब्रिटिशर्स को, सभी अंग्रेजों को, कि भारत में ब्रिटिशर्स क्या पढ़ाना चाहती है. वो नेटिव्स को वो नहीं पढ़ाना चाहती जो नेटिव चाहते हैं, वो नेटिव्स को वो पढ़ाना चाहती है जो वेस्टर्न कल्चर के लोग चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं. He declared should not be to teach what the native wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education, उनके जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, the aim of education ought to be teach what was useful and practical. जेम्स मिल कह रहे हैं कि it ought the aim of education ought to be teach what was the useful and practical. So Indians should be made familiar with scientific and technical advance that the West had made, rather than with the poetry and the sacred literature of the Orient. कहते हैं कि हमें भारतीयों को वो चीज पढ़ाना है जो ब्रिटिशर्स की निगाह में एक अच्छा माना जाए, एक अच्छा जानकारी मानी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत का जो साहित्य है वो नॉन सीरियस है. द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो उद्देश्य है, आर्ट टू बी टीच, कि पढ़ाया जाए, व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, जो उपयोगी हो, जो प्रैक्टिकल हो. प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो उपयोगी नॉलेज है, वही पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, ऐसा जेम्स मिल का मानना था. सो इंडियंस शुड बी made familiar with the scientific and technical advance that West had made. इसलिए भारतीयों को तकनीकी ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दिया जाए जो भारतीयों को बनाएगा क्या, वेस्ट हैड में, जो पश्चिम ने बना के दिया, भारतीयों को उसको सीखना पड़ेगा. rather than with the poetry and the sacred literature of the Orient. कहता है यहाँ पे जो लिटरेचर है उसको समझना. By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas the Babington Macaulay. अब एक और विचारक आया जिसने इस पूरे सूझ पे, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चोट किया. Who was he? कौन था वो? ये without any doubt you have to think the name of a particular person. He was the Babington Macaulay. वो मैकाले था. He was sharper critic. I mean to say that critic. वो एक बहुत ही तेज, तीव्र, तीखा आलोचक था भारतीय एजुकेशन सिस्टम का. वो ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीय अध्ययन को हम यहाँ पे भारत में जारी नहीं सकते. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने भारत को जीता है, अब हमें भारत को किस तरह से जीतना है, मानसिक
मानसिक रूप से जीतना बाकी है। मेंटली हम उसको तभी जीत सकते हैं जब हम उनके पूरे कल्चर को, उन पूरी सभ्यताओं को एक नए तरीके से परिभाषित करें। आई होप यू हैव रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने आपसे क्या कहा, आपको याद हो। मैंने आपसे कहा कि ये वही मैकाले है जो अब ये कह रहा था कि भारत किसका देश है? सपेरों का देश है। भारत ओझा, विजाड़, जादूगर, अंधविश्वास से भरा हुआ है। भारतीय लोगों को प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज देने के लिए पश्चिम के ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जानी चाहिए। संस्कृत और अरेबिक नॉलेज भारतीयों को शिक्षित नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना था। और इसीलिए मैकाले का जो ये मिनट्स था पास हुआ 1835 में, एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट हुआ और भारत में एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को फिर एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।